Our next concept is angle between two lines. So this is line 1 and this is another line. This is line 1. This is line 2. And we know that if, see, somehow if you can find this angle, this is an obtuse angle, angle A, we can find other angle also. If we can find A, then we can find this angle B. How? By linear pair axiom. And we can find this angle also, vertically opposite angle and vertically opposite angle. So our priority is what? Our priority is, means what I mean to say that if we have acute angle value, say angle A, then we can compute other angles easily. Right? For example, so this is the angle 1, this is the line 1, and this is the line 2. Now say this is the angle alpha. Then this is the angle 180 minus alpha. Now if we know the value of alpha, say value of alpha is 30 degree. Then we know the value of this angle, that is 150 degree. And if this is 30, this will also be 30. And this is 150, this will also be 150. Means we can find the value of other angles, but the condition is we know the value of this angle alpha. Now how to find the value, what is the relation between the angles? So this is the axis. So ये हो गया आपका x axis. This is x dash. This is y. And this is y dash. Right? Now say this is the line L. And this is another line. So this is line L1 and this is line L2. The angle between these two lines is say alpha. Now if this is alpha, this will also be alpha, right? So angle made by the line L2 with the positive direction of x-axis is theta 1 or theta 2, and angle made by the L1 with the positive direction of x-axis is theta 1. थीटा 1. अब अगर आप ध्यान से देखो ये एक ट्राइंगल है, मैं इसको शेड करके दिखा रहा हूँ. दिस इज अ ट्राइंगल. ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ये जो थीटा 2 है आपका,
we can say that this is an exterior angle. This is an exterior angle. And we know that exterior angle is equal to sum of two opposite interior angle. So can I say that theta 2 is equal to theta 1 plus alpha? Theta 1 plus alpha. On the basis of this, we can say that alpha is equal to theta 2 minus theta 1. Minus theta 1. एक रिलेशन तो ये मिला हमें, that theta 2 is equal to theta 1 plus alpha, and this is our acute angle. तो जो आपको मेन एंगल जो आपको फाइंड करना है, that is alpha, it is equal to theta 2 minus theta 1, right? And we also know that slope of a line 1, that is m1, is equal to tan theta 1. ये हम प्रीवियस क्लास में सारा स्टडी कर चुके हैं. इन टर्म्स ऑफ ए एंगल जो किसी लाइन का स्लोप होता है वो tan थीटा के इक्वल होता है, जहाँ पे थीटा क्या होता है, वो जो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है. ये जो L1 है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो थीटा 1. तो m1 इक्वल टू tan थीटा 1. और स्लोप ऑफ अ लाइन 2, we can say that m2 is equal to tan theta 2. m2 is equal to tan theta 2. Now we can use these values in this equation. और अगर ऐसे नहीं करना तो देखो क्या है, अल्फा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1. तो वी कैन राइट इट एज now alpha is equal to theta 2 minus theta 1 multiplying both side by 10, multiplying both side by 10. But we will have tan alpha tan theta 2 minus theta 1. अब अगर आप ध्यान से देखो तो एक रिलेशन बन गया आपका tan a माइनस बी, tan a माइनस बी. So tan a minus b means tan alpha is equal to tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. अब आप ये देखो कि tan थीटा 1 और tan थीटा 2 है क्या. tan थीटा 1 जो है वो आपका स्लोप ऑफ ए लाइन 1 है, और tan थीटा 2 की जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए लाइन 2 दैट इज m2. तो जब हम इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे व्हाट वी विल हैव, tan अल्फा is equal to tan theta 2 means m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2, राइट. अब हमें जो फाइंड करना है वो एक्यूट एंगल फाइंड करना है, और एक्यूट एंगल की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव. टू फाइंड acute angle value m2 minus m1
अपॉन 1 प्लस m1 m2 शुड बी पॉजिटिव, बिकॉज एक्यूट एंगल तो 0 90 के बीच में होता है, 0 90 के बीच में सारे एंगल आपके पॉजिटिव होते हैं, तो ये जो वैल्यू है आपकी ये पॉजिटिव होनी चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो इसकी प्रेजेंटेशन होती है वो किस तरह से होती है, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू, हम इसको मॉड्यूलस में लिखते हैं सो दैट इट रिमेन पॉजिटिव, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसी वजह से ये जो फॉर्मूला है आपका वो किस में होता है, मोड में होता है। एंड दिस इज द रिलेशन विच वी वांट टू डिराइव। अब कंडीशंस क्या होती हैं, देखो m1 और m2 जो टू डिफरेंट लाइंस के स्लोप है। अब लाइंस के बीच में क्या कंडीशंस होती हैं, से इफ लाइंस आर पैरेलल। अब एक बात बताओ, अगर दो लाइंस पैरेलल होगी तो उनके बीच में कोई एंगल होगा नहीं, इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू जीरो। तो जो tan जीरो है आपका, इट विल बी इक्वल टू m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। tan जीरो की वैल्यू क्या होती है, tan जीरो इज जीरो, तो जीरो विल बी इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। डिनोमिनेटर जीरो से इंटू होकर जीरो हो जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 इक्वल टू जीरो। इट मीन्स व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, तो जो उनके स्लोप हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक रिलेशन हमने ड्राइव किया, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स विल बी इक्वल, मींस when two lines with slopes m1 and m2 are parallel, then their slope will be equal, m1 will be equal to m, m1 will be equal to m2। Second condition, second condition, if two lines with slope m1 and m2 are perpendicular, then first of all alpha will be equal to 90 degree, जो एंगल है वो क्या होगा, 90 डिग्री, दैट इज tan 90 will be equal to m2 minus m1 over 1 plus m1 m2। तो tan 90 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। तो जब भी साइन ऑफ मॉड्यूलस को हम रिमूव करते हैं तो इसकी जगह प्लस माइनस का साइन आता है, प्लस माइनस m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। अब कोई भी फ्रैक्शन अगर इंफिनिटी के इक्वल होता है, इसका मतलब क्या होता है, इफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, इट इम्प्लाइज डिनोमिनेटर वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। भाई नॉट डिफाइन का मतलब क्या, डिनोमिनेटर में जीरो है। मैथमेटिकली कोई भी वैल्यू नॉट डिफाइन के इक्वल कब होती है, जब उसका डिनोमिनेटर क्या हो, जीरो।
It implies denominator value is equal to 0. तो 1 plus m1 m2 जो डिनोमिनेटर है इस फ्रैक्शन का, इट शुड बी इक्वल टू 0. It implies 1 plus m1 m2 should be equal to 0, and it means m1 m2 will be equal to -1. तो इस तरह से रिलेशन ड्राइव हुआ है. दैट इज if two lines are perpendicular, then slope of first line into slope of second line, यानी कि दोनों लाइन के जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा m1 m2 विल बी इक्वल टू -1. अगर पैरेलल्स होंगी तो उनके स्लोप्स इक्वल होंगे, और अगर परपेंडिकुलर होंगी तो इनके जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा इट विल बी इक्वल टू -1. दिस इज द अनदर रिलेशन विच वी डिराइव. ओके, so the first question of exercise 10.1 is draw a quadrilateral in the Cartesian plane whose vertices are -4, 5, 0, 7, 5, -5, -4, -2, and also find its area. Okay, so first of all, what we need to do, draw a quadrilateral in the Cartesian plane. So ये say this is the Cartesian plane, right? According to the question, the vertices are -4, 5, 0, 7. So -4, 5, 0, 7. तो रफली हम ले लेते हैं -4, 5 से दिस इज द पॉइंट -4, 5, and then 0, 7. So this is 0, 0, 7. Say, this is the point 0, 7, and then 5 -5. So this is 5. So this is the point 5 -5. को रफली बनाना है तो मेजरमेंट नहीं शो करनी है. एंड द फोर्थ पॉइंट इज -4, -2. -4, -2 से यहाँ हम ले लेते हैं -4 माइनस, दिस इज द फोर्थ, राइट. दिस इज द पॉइंट A, B, C and D. So what we will do, join these points. This is the given quadrilateral. अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आपको याद होगा आपने 10th क्लास में जस्ट we don't know how to find the area of quadrilateral, but what we can do, if I join BD, then we have two different triangles, ABD and ACD, BCD. By finding the area of these two triangles and then by combining these two area, we will have the area of this quadrilateral. जैसे हम 10th में करते थे हम उसी कंसेप्ट के साथ करेंगे. What we will do, we will find the area of triangle first of all ABD. Area of triangle ABD
बी डी इज इक्वल टू हाफ मॉड्यूलर साइन फॉर्मूला क्या होता था x1 विद इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 विद इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 विद इन ब्रैकेट y1 माइनस y2, right? And it will be equal to half x1 माइनस 4 5, ये x1 y1 हो जाएगा, तो -4 आपका x1 हो गया, y2 माइनस y3। अब अगर ये x1 y1 है तो ये x2 y2, y2 माइनस y3, 7 माइनस माइनस प्लस 2, तो सीधा क्या मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 9। चलो मैं लिख देता हूँ y2 क्या हो जाएगा 7 माइनस y3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, राइट, प्लस x2। अब x2 क्या है आपका 0, तो 0 इंटू एनीथिंग है तो सारे 0 हो जाएगा, प्लस x3 क्या है आपका -4, तो -4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4, y1 माइनस y2 5 माइनस 7, so it will be equal to half 7 plus 2 9, 9 into -4 -36, 5 माइनस 7 -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8, और -36 प्लस 8 हो जाएगा आपका हाफ -28। तो से एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी से ही हो गया A1, तो A1 आ गया हमारा, माइनस अगर मोड है तो पॉजिटिव भी हो जाएगा 14 स्क्वायर यूनिट, 14 स्क्वायर यूनिट, ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी। नाउ वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी। एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसीडी। अब आपके ऊपर है, आप इसको x1 लेते हो या इसको x1 लेते हो। अगर आप c को x1 लेते हो तो आपका x1 हो जाएगा 5, देन ये हो जाएगा y2 माइनस y3 7, माइनस 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 क्या हो जाएगा +2, तो आपका x2 हो जाएगा 0, प्लस x3 हो जाएगा -4 -5 -7, राइट। तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है आपका सही हो गया आपका A2, तो A2 विल बी इक्वल टू हाफ 7 + 2 कितना होगा 9, 9 5 जा 45, माइनस -7 + 5 -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक बार इसको चेक करना पड़ेगा, -4 आपका x3 था, देन -5 -7 होगा, यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा आपका -4, -5 -7 कितना हो जाएगा -12, कितना हो जाएगा -12, तो हाफ 45 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +48, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 93, तो जो आपका A2 है ये हो जाएगा 93/2 स्क्वायर यूनिट। तो जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है हमारा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल
ए बी सी डी, इट विल बी इक्वल टू A1 प्लस A2। A1 आपका आया है 14 और ये है आपका 93/2। तो ये हो जाएगा आपका 14 to the 28 प्लस 93/2 एंड इट विल बी इक्वल टू 1